Hello student, today we will study quadratic equation. This is chapter number 4. So we study introduction of quadratic equation and do exercise 4.1. Okay, so let's start. 3 is added 2 times of a number. Okay, this is mathematical statement. If we convert this mathematical statement into mathematical expression, so it will become 2x plus 3. Okay, 2x plus 3. Mathematical expression is 2x plus 3. It is also called algebraic expression. Okay, algebraic expression, and this is also called polynomial. Okay, we studied about polynomial. We classify polynomial. If a polynomial have one term, for example 2x, this is called monomial. And the polynomial having two terms, for example 3x minus 2, this is called binomial. And the polynomial having three terms, four x plus 3 x plus 2, this is called trinomial. Okay, and we studied polynomial on the basis of its degree. If a polynomial having 1 degree, okay, 2x power of x is 1 degree, it is called linear polynomial. And the polynomial having 2 degree, like this 2 degree, this is called quadratic polynomial. Okay, and the polynomial having 3 degree, like this, it is also called cubic polynomial. Okay, now if we put equal and write on right side any real number, real number 0, 1, minus 1, minus 2, 1 by 2, and root 2. Okay, any number. For example, if we put equal to 0 here, 3x to the power 3 minus 2 equal to 0. And if we put equal and write 1, 2, 3, whatever the number, any real number here, for example we put 0. Okay, this is called equation. This is called equation. This is not a polynomial, it is equation. Okay, it is a equation. This equation having 1 degree, it is called linear equation. It is called linear equation. And this equation having 3 degree, it is called cubic equation. Cubic equation. And this equation having maximum degree is 2, so it is called quadratic equation. Quadratic equation. Okay, so we studied about this equation. Okay, the equation having maximum degree, for example this equation having 2 degree, so it is called quadratic equation. And the zeros of quadratic equation has 2. Okay, इसके 2 zeros होंगे. If
the equation having maximum degree is 3, okay, having 3 zeros, okay, having 1 degree, so equation having 1 zeros, okay. So let's study quadratic equation. So standard form of quadratic equation is standard form of quadratic equation: a x square plus bx plus c equal to 0. Okay, this is standard form of quadratic equation. Here we check what is quadratic equation or what is not a quadratic equation in exercise 4.1. So we solve these equation and make the form, try to make the form like this: ax square plus b plus bx plus c. If this equation having maximum 2 degree, so it is called quadratic equation. Okay, let's check. Exercise 4.1. Question first: check whether the following are quadratic equations or not. First part is x plus 1 का whole square equal to 2 bracket x minus 3. Okay, first we solve this. So we open the bracket, a plus b whole square, like a square plus b square plus 2 into a into b. Okay, this is a and this is b, equal to okay 2 की x में मल्टीप्लाई 2x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 2 3 से प्लस माइनस 2 3 से 6. x स्क्वायर प्लस 1 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1. ओके, दिस विल बिकम ओनली 2x इक्वल टू 2x minus 6 plus 2x in left side and plus 2x in right side, so it will eliminate, cancel by each other. Okay, now here x square plus 1 equal to -6 is left. x square plus 1 -6 भी लेफ्ट में लाएं, +6 हो जाएगा इक्वल टू 0. ओके, यहाँ 0 रह गया. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू +7. ओके, +1 प्लस 6 will become +7 equal to 0. Okay, so this is quadratic polynomial. Okay, right here quadratic equation. Okay, this is quadratic equation because it has maximum degree 2. Okay, quadratic equation required a is not equal to 0. Okay, what is the means of a is not equal to 0? If a is 0, then this term will become 0 and bx plus c is left. Okay, bx plus c is not a quadratic equation, it is a linear equation. Okay, so first term यानी ax स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट टर्म जरूर होना चाहिए. ओके, यहाँ हियर इज 3 टर्म्स, यहाँ 3 टर्म्स हैं, इनमें चाहे कोई भी हमारे पास चाहे एक टर्म क्यों ना हो, मैक्सिमम डिग्री 2 ही होना चाहिए. अगर सिंगल हमारे पास ये टर्म है ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म ना हो तब भी हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx हो, ये टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, तब भी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, ax स्क्वायर प्लस c, अगर सिर्फ ये दोनों टर्म हो, ये ना हो, तब भी हम कहेंगे कि ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट टर्म ज़रूर होना चाहिए। ओके, बाकी कोई टर्म हो ना हो, ये फर्स्ट टर्म ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 here is x square plus 7, so it is a quadratic equation. Let's check second. X minus 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 3. Okay, solve it. मल्टीप्लाई करें दोनों ब्रैकेट्स की x से हो जाएगी x स्क्वायर, x की प्लस 1 से हो जाएगी 1x. ओके, माइनस 2 की x से हो जाएगी माइनस 2x, माइनस 2 की प्लस 1 से हो जाएगी माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2. ओके, यहाँ पर भी ऐसे ही करें, x की x से मल्टीप्लाई समझ आ रही है, x की इस पूरे ब्रैकेट से करना, यानी x की पहले x से कर देंगे और फिर इसी x की 3 से. ओके, माइनस 1 की x से कर देंगे. ओके, फिर माइनस 1 की प्लस 3 से भी कर देंगे. ओके, तो x की x से करते हैं x स्क्वायर, फिर x की प्लस 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3x. ओके, माइनस 1 की x से करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1x. ओके, माइनस 1 की प्लस 3 से करते हैं प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3. सॉल्व करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में एंड प्लस एक्स स्क्वायर राइट साइड में, इट विल बी कैंसिल. ओके, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आए, प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस का 1x माइनस का 2x, तो ये रह जाएगा माइनस का 1x. ओके, माइनस 2 इक्वल टू प्लस 3x माइनस 1x, ये हो जाएगा प्लस का 2x. ओके, देखिए प्लस की 3 और माइनस का 1 है, तो प्लस 3 में से माइनस 1x जाएंगे तो प्लस 2x रह जाएंगे माइनस 3. माइनस 2x, इस टर्म को भी यहाँ ले आए, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x. माइनस 2 ऑलरेडी लेफ्ट में है, माइनस 3 को भी लेफ्ट में ले आए, ये हो जाएगा प्लस 3. यानी हम सारे के सारे टर्म लेफ्ट में ले आए, राइट में क्या रह गया 0. ओके, माइनस x माइनस 2x मिलकर हो जाएंगे माइनस 3x एंड माइनस 2 प्लस 3 मिलकर हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0. चेक हियर, लुक हियर, हियर इज नॉट अ टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, यह एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है. ओके, एक्स टू द पावर 2 वाला. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, यहाँ एक्स टू द पावर वाला 1 टर्म है, एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म है, यानी मैक्सिमम डिग्री इसकी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक नहीं हुई. ओके, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ quadratic equation. Okay, let's check second. This is first, this is third and this is second. Second check करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, माइनस 2 की माइनस x से माइनस माइनस प्लस. ओके, माइनस माइनस प्लस 2 की x से 2x. ओके, सारे के सारे टर्म हम लेफ्ट में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर ऑलरेडी इन लेफ्ट, माइनस 6 को भी यहाँ लेफ्ट में ले आए, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x को भी लेफ्ट में ले आए, माइनस 2x हो जाएगा. ओके, राइट में रह जाएगा 0. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों टर्म लाइक टर्म ही ऐड होते हैं ना, ये दोनों टर्म मिलकर हो जाएंगे माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. ओके, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन गई, यानी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई. ओके, तो लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is quadratic equation. Okay, let's check fourth part. X minus 3 and other bracket is 2x plus 1 equal to x multiply bracket x plus 5. Okay,
लेट्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट की। पहले x से इसकी फिर -3 से भी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ओके, x से 2x की करते हैं तो 2x से x की होगी x² हो जाएगा। x से +1 की करते हैं तो +1x हो जाएगा। ओके, यहाँ 1 होता है, 1 को शो नहीं करते हैं। -3 की +2x से। ओके, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 और साथ में x भी है। ओके, फिर -3 की +1 से कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 1 3। ओके, इक्वल टू लगाया और x की इस ब्रैकेट में कर लेंगे, x की x से भी, x की 5 से भी। x की x से करेंगे तो x² हो जाएगा और x की 5 से करेंगे तो 5x। ओके, सारे टर्म लेफ्ट में ले आते हैं। 2x² इज ऑलरेडी इन लेफ्ट, प्लस 1x माइनस 6x, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -5x। ओके, एंड ऑलरेडी इन लेफ्ट साइड -3। ओके, इनको हमने सॉल्व भी कर लिया और लेफ्ट साइड में रहने भी दिया। ओके, राइट साइड वाले भी लेफ्ट में ले आए, -x² प्लस x² लेफ्ट में आकर -x² प्लस 5x लेफ्ट में आकर -5x। ओके, राइट में रह गया ओनली 0। लाइक टर्म x² एंड x², ये दोनों लाइक टर्म है, इनको आपस में माइनस कर लेंगे। ओके, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है। ओके, 1x², ये प्लस का 2x², तो ये माइनस होंगे, तो पास लिख लें इनको, 2x² माइनस 1x²। ओके, लाइक टर्म यहाँ पर ये भी है, -5x। ओके, इनको तो ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, -5x। चलिए लिख लेते हैं -5x -5x। ओके, -3। ओके, कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है, -3 इक्वल टू 0। प्लस 2x² माइनस 1x² रह जाएंगे 1x²। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ 1 होता है, 2 में से बन जाएगा 1 रह जाएगा। ओके, -5x मिलकर हो जाएंगे -10x -3 इक्वल टू 0। ओके, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो गई, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म हो गई। ओके, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट पार्ट। Next part is part 5th, 2x minus 1, x minus 3, x plus 5, x minus 1. Okay, let's do it. 2x की x से कर लेंगे, हो जाएगा 2x²। ओके, 2x की -3 से करेंगे तो प्लस माइनस 2 3 6x। -1 की x से करेंगे -1x, -1 की 3 से करेंगे तो माइनस प्लस और 3 1 3 इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, x की x से x²। ओके, x की -1 से 1x, प्लस 5 की x से 5x एंड प्लस 5 की -1 से तो हो जाएगा प्लस माइनस और 5 1 5। ओके, सभी टर्म लेफ्ट में ले आते हैं। 2x² -6x -1x, ये मिलकर हो जाएंगे -7x। ओके, प्लस 3, इन्हें भी लेफ्ट में ले आए। ओके, प्लस x² यहाँ कर हो जाएगा -x²। यहाँ देखिए -1x प्लस 5x, ये मिलकर हो जाएंगे प्लस के 4x। ओके, -1x से प्लस 5x है, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो प्लस 4x हो जाएगा यहाँ, और फिर उसको हम प्लस 4x को लेफ्ट में लेकर आएंगे, वो प्लस 4x माइनस 4x हो जाएगा। ओके, -5, ये भी यहाँ कर प्लस 5 हो जाएंगे इक्वल टू 0 यहाँ रह जाएगा। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 1x²। ओके, 2x² माइनस 1x², लाइक टर्म पास लिख लिए। 7x माइनस 4x। ओके, ये भी लाइक टर्म पास लिख लिए,
प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 1x² रह जाएगा प्लस का 1x²। ओके, माइनस 7x माइनस 4x मिलकर हो जाएगा माइनस के 11x। ओके, प्लस 3 प्लस 5 मिलकर हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। ओके, it will be a quadratic equation. Okay, x² minus 11x plus 8, it is quadratic equation. Okay, let's check sixth part. In sixth part, x² plus 3x plus 1 equal to, ओके, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4x। ओके, फिर यही करते हैं, सारे टर्म लेफ्ट में ले आते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 आर ऑलरेडी इन लेफ्ट, यहाँ से x² को भी लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट में आकर माइनस x² हो जाएगा, प्लस 4 को लेफ्ट में लाकर माइनस 4 एंड माइनस 4x को लेफ्ट में लाकर प्लस 4x इक्वल टू, यहाँ राइट में 0 रह गया है, सारे के सारे टर्म हम लेफ्ट में ले आए। ओके, प्लस x² माइनस x² ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस के 3x प्लस के 4x मिलकर हो जाएंगे प्लस के 7x। ओके, प्लस 1 एंड माइनस 4, प्लस 1 एंड माइनस 4, दिस इज प्लस 1 दिस इज माइनस 4, ये मिलकर हो जाएंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ पर x² वाला टर्म मिसिंग है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, ये लीनियर इक्वेशन हुई। ओके, तो लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स चेक सेवेंथ पार्ट।